آج ایک خاص مضمون میرے دل میں ہے، آپ سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے۔ کل رات میں نے اس سے کافی برکت پائی اور آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر برکت پائیں، آمین۔ یشوع کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 8ویں آیت، اور خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے: شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اس کا دھیان رہے، اور لکھا ہے جب تو اس پر احتیاط کر کے عمل کرے گا تب ہی تو خوب کامیاب ہوگا، تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، خدا کا کلام جو لوگ پڑھتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی بسر کرتے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں۔ کامیابی محض دولت نہیں ہے جی، کامیابی ایک بہترین خاندان ہے۔ جو شخص بہترین خاندان کے اندر رہ رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک کامیاب شخص ہے۔ وہ شخص جس کے بچے اس کی بات مانتے ہیں اور وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، وہ کامیاب شخص ہے۔ جس کی ہم آہنگی اس کی بیوی کے ساتھ ہے، اس کی بیوی کی ہم آہنگی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، وہ کامیاب ازدواجی جوڑا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم کامیاب زندگی بسر کریں، اور اس کامیاب زندگی کو بسر کرنے کے لیے خدا نے مجھے اور آپ کو اپنا کلام بخشا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے کلام کو اپنی سوچوں پر، اپنے خیالوں پر، اپنی زندگی پر، اپنے رویوں پر اور اپنے کردار پر مسلط کر لیں تو ہم کامیاب لوگ بن سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم بدل کر اور ہی لوگ ہو جائیں گے۔ لیکن ان 19 سالوں میں جو میں نے منادی کی، لوگوں کے درمیان لوگوں سے بات چیت کی، اور ہم سب ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں نے ایک چیز ڈسکور کی ہے کہ لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں، لیکن انہیں خدا کا کلام سمجھ نہیں آتا جی۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چرچ بھی آتے ہیں، چرچ سے جب باہر جاتے ہیں تو کلام ان کے ذہن سے کافور ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس کلام کو انہوں نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا ہوتا۔ اپنے گھروں میں کلام پڑھتے ہیں، جیسے ہی بائبل بند کرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا مجھے سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے جی کلیسیا کی، جس چیز کی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس چیز کو کرنے پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں، جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کو کرنے کے لیے ہم آمادہ بھی نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یہ پتا ہے کسی بیٹی کو کہ روٹی کیسے بننی ہے تو وہ کہے گی میں روٹیاں بنا دیتی۔ جس کو پتا ہے روٹی کیسے نہیں بنتی، کیسے پیڑے کو بنانا ہے، کیسے اس کو بیلنا ہے، کیسے توے پہ ڈالنا ہے، سب سے بڑا خوف تو توے پہ ڈالنا ہے، کیونکہ توا گرم ہوتا ہے اور ڈر لگتا ہے۔ جب میں نے روٹیاں پکانی سیکھی تھی، میں بناتا نہیں ہوں اب، جب میں نے بنانی سیکھی تھی، جب میری والدہ بیمار تھی، میری والدہ کو فالج ہو گیا تھا اور اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا، تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ بیٹا ایسے پیڑا بناؤ، اس کو ایسے کرو، کیونکہ میری ماں کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا۔ تو اس وقت میں خود روٹیاں بناتا تھا، تو سب سے زیادہ جو خوف لانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ گرم توے کے اوپر روٹی ڈالنی۔ تو میں سمجھتا ہوں دوسروں کو بھی شاید ایسے ہی خوف لگتا ہو، لیکن جیسے جیسے مجھے بنانی آ گئی میرے اندر سے وہ خوف جاتا رہا۔ میں اور آپ جن چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آج کلیسیا کے لیے ایک بڑا فقدان یہ ہے، کلیسیا کے اندر کلیسیا کلام سن رہی ہے، کلام کو پڑھ رہی ہے، لیکن وہ کلام کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی۔ جب تک ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے، سمجھے ہم نے اسے ڈائجسٹ نہیں کیا، ہم نے اسے ہضم نہیں کیا۔ خوراک جو لوگ کھاتے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوتی، کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ وہ بیمار ہو جاتے ہیں، انہیں الٹیاں آتی ہیں اور ان کا اسٹمک اپسٹ رہتا ہے، ان کی طبیعت بوجھل رہتی ہے، اور ان کے چہرے کے اوپر کوئی خوشی اور شادمانی باقی نہیں رہتی، اور ان کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے کہ بیمار ہے۔ وہ لوگ جو کلام کو سن رہے ہیں، کلام کو پڑھ رہے ہیں، جب انہیں سمجھ نہیں آتا تو وہ عملی طور پر اس کلام کو اپنی زندگی میں اپنا نہیں پاتے۔ جب عملی طور پر اپنی زندگی میں ہم کلام کو اپناتے نہیں ہیں تو ہماری زندگی بے پھل رہ جاتی۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھیں، اس کے کلام کو مانیں، اس کے کلام کو ایمان سے قبول کریں اور پھر اس کے کلام پر ایکٹ کریں تاکہ خدا ہمیں برکت دے، آمین۔ تو پہلی بات جو میں نے ڈسکور کی ہے جی، کلام کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کیونکہ ہمارے دماغ بند ہیں۔ بند دماغ اور بند پیراشوٹ موت کی علامت۔ پیراشوٹ اگر نہ کھلے تو بندہ مر جاتا ہے، اور اگر دماغ بند رہ جائے تو بھی بندہ مر جاتا ہے۔ اس کے لیے حوالہ میرے ساتھ نکالیے، لوکا کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی 45ویں آیت۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا۔ کیا کیا جی؟ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ اگر میں اور آپ خدا سے یہ دعا نہ کریں کہ خداوند ہمارا دماغ کھول، تو ہمیں کلام سمجھ نہیں آئے گی۔
बहुत से लोगों का दिमाग इसलिए बंद है और वो कलाम को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि उन्होंने इस बात के लिए दुआ ही नहीं की कि खुदावंद तो हमारा दिमाग खोल दे। मैं आपको बताऊं कि जब से मैंने खुदावंद को कबूल किया है, मेरी जिंदगी की सबसे टॉप प्रेयर जो है वो ये है कि खुदावंद मुझे अपना कलाम सिखा, मुझे अपना कलाम समझा। और आप यकीन माने कि खुदावंद ने मुझे कसरत से कलाम दिया है। ये नहीं कि मैंने खुदा से कहा, खुदा की ये मर्जी है कि वो हर एक को कसरत से कलाम दे, हर एक को अपना कलाम सिखाए और समझाए, क्योंकि खुदा को पता है जब इसको कलाम समझ आ जाएगा, जब कलाम इसकी रूह में उतर जाएगा, ये ईमान से उसे कबूल कर लेगा, तो ये इसकी तरक्की का बाइस होगा। खुदा हमें कलाम इसलिए सिखाना चाहता है ताकि हम तरक्की करें। खुदा का मंसूबा भलाई का मंसूबा है, खुदा का मंसूबा तरक्की का मंसूबा है, खुदा का मंसूबा प्रॉस्पेरिटी का मंसूबा है, और खुदा हमें अपग्रेड करना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम एक कमतर जिंदगी गुजारें, खुदा हमें एक बुलंद बाला मुकाम पर लेकर जाना चाहता है, और खुदा चाहता है कि हम मसीह के हम मिरास बने और मसीह के हम शक्ल भी बने। मसीह के हम शक्ल बनने का मतलब है मसीह जैसे करैक्टर को अपनाना। यह नहीं कि हमारी सबकी शक्लें यीशु की तरह हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। हमारा किरदार क्राइस्ट की तरह होगा। हमारे किरदार में से, हमारी जिंदगी में से, हमारी बातों में से, हमारे उठने बैठने में से और हमारी गुफ्तगू से खुदाम यीशु मसीह नजर आएगा। लिखा स्तिफनस को जब उन्होंने कटहरे के अंदर देखा था तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, उन्होंने कहा इसका चेहरा तो फरिश्ते की तरह है। जब उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, खुदा इसलिए चाहता है कि हर कोई कलाम सीख ले ताकि वो तरक्की पा सके। खुदा तरक्की देना चाहता है। क्या आप तरक्की पाना चाहते हैं? आमीन। तो आप खुदा मुझसे दुआ करें, खुदा मेरे जहन को खोल, जिस तरह तूने रसूलों के जहन को खोला था। और उसके बाद आप रसूलों की लाइफ देखें, वो अमेजिंग लाइफ है। उनका जहन खुल गया। फिर जितने भी डॉक्ट्राइन आगे मसीही तालीम की जो बुनियादी बातें हमें अनाजील के बाद मिलती हैं, वो रसूलों ही ने लिखी हैं, क्योंकि उनका दिमाग खुल गया था। वरना वो यीशु के पास बार बार आते थे। खुदावंद इस तमसील का क्या मतलब है? खुदावंद इस तमसील का क्या मतलब है? उनके भी दिमाग बंद थे और यीशु मसीह ने कहा मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। आज कलीसिया के अंदर जितने भी लोग हैं, मैं ये कहूंगा 99.9% लोग इस जहन से आते ही नहीं है कि वो खुदा को खोजे, खुदा को जाने। उनके जहन में अपनी प्रॉब्लम्स हैं। बॉस तंग कर रहा है, तनख्वाह नहीं मिल रही, तनख्वाह लेट हो गई है, तनख्वाह बढ़ नहीं रही, और किराए के मकान में रहते हैं, मालिक मकान ने जवाब दे दिया है, रसौली निकल आई है, फोड़ा निकल आया है, बच्चा फेल हो गया है, फलाना मसला फलाना मसला फलाना मसला। और वो चर्च में आते हैं ताकि हमारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन खुदा चाहता है कि वो इससे एक बड़ी चीज सीख ले। खुदा चाहता है कि उनका ज़हन खुल जाए ताकि वो कलाम को कबूल कर लें। और जब कलाम को कबूल कर लेंगे तो उनके अंदर इतनी हिकमत और दानाई आ जाएगी कि वो तमाम मामलात को डील कर सके। मैं आपको बताऊं, जब मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया और मैंने तौबा की तो मैंने इंतहाई ज्यादा कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सब कुछ ऑफ कर दिया अपनी लाइफ में। फिल्में देखता था, हर रोज फिल्म देखता था सिनेमा में जाके। ऑफिस से छुट्टी होती थी, चूंकि मैंने बैठक में ही आना होता था, अकेला रहता था, तो मैं सोचता था बोर ही होऊंगा, चलो चलिए, जैसे उसने गीत गाया ना मोहम्मद अली, चलो चलिए आज दुआ दे ले, तो मैं कहता चलो चलिए टाइम पास कर ले। और मैं सिनेमा चला जाता था और रात को 12 बजे तक वहां पे फिल्में देखता रहता। फिर मैं थक जाता था और जब मैं घर आता था मैं आकर सो जाता था। ये मेरी रूटीन थी। लेकिन जब मैंने तौबा कर ली, मुझे 6 बजे छुट्टी होती थी ऑफिस से, तो मैं फौरन ऑफिस से अपने कमरे में आता था और आके बाइबल पढ़ता था। 5-5 घंटे मैं बाइबल पढ़ता था और ड्यूरिंग सर्विस भी, अपने काम के दौरान भी मैं बाइबल पढ़ता रहता था। और मेरा ऑफिस सुबह 9 बजे लगता था, लेकिन मैं वहां पर 6:30 बजे 7 बजे पहुंच जाता था और 2 घंटे ऑफिस खुलने से पहले भी कलाम पढ़ता था और कलाम ही पढ़ता रहता था। उससे क्या हुआ, मेरे रवैये के अंदर एक अजीब तब्दीली आ गई। मैं एक नाउमीद शख्स था लेकिन मैं उम्मीद से भर गया। मैं ईमान से खाली आदमी था लेकिन मेरे अंदर ईमान आ गया। एक नौजवान मेरे पास आया, मेरे पास 1200 तनख्वाह थी उस वक्त मेरी 99 में, तो 1200 रुपया मेरी तनख्वाह थी। तो एक नौजवान आया, उसने कहा कि भाईजान मेरी बीवी बड़ी बीमार है और मेरी बीवी के लिए टेस्ट लिख दिए हैं और तकरीबन 1500 रुपया चाहिए और 300 रुपया तो मेरे पास है लेकिन 1200 नहीं है। तो 1200 चाहिए। मैं आगा मेरे को तो 1200 यानू किने दसिया। और मैंने दिल में सोचा कि मैं इनकार कर देता हूं, मैं भी तो गरीब आदमी हूं। याद रखें, किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। ये नहीं है कि आपके पास अरबों डॉलर होंगे तो उसमें से आप 2000 की मदद करेंगे, ऐसा नहीं है। वो मदद कंसीडर नहीं होगी। यीशु मसीह ने कहा जो फकी फरीसी डाल रहे हैं हदिया, वो तो अपनी दौलत की कसरत की वजह से, बहुतात की वजह से डाल रहे हैं। उनके पास अरबों डॉलर पीछे पड़े हुए, थोड़ा सा डाल रहे हैं और वो भी दिखा के डाल रहे हैं। लेकिन इस औरत के पास तो 2 ही तमड़ियां और इसने पोशीदगी में वो डाल दी। यीशु ने कहा सबसे ज्यादा इस औरत ने डाला क्योंकि इसने गुर्बत के अंदर मेरी ताबेदारी की। और 1200 रुपया मेरे पास था। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा कि इनकार कर दूं। शैतान मुझे कहने लगा इनकार कर दे, इनकार कर दे। लेकिन खुदा का शुक्र है मेरा जहन उस वक्त खुल चुका था
اور खुदावंद ने मुझे याद कराया कि अगर कोई तुझसे मांगे तो उसे ये ना क्या कि कल आना। खुदा ने कहा अभी दे दो। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने 1200 रुपया निकाल कर उसको दिया। मैंने कहा जनाब वो तो खुश हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये तो खुद गरीब आदमी है। उसे ये था किसी से मांग के देगा, अपने बॉस से कहेगा शाम तक मुझे जाने से पहले पैसे दे देगा। लेकिन मैंने उसी वक्त सिक्का रायुल वक्त उसको निकाल के दिए और वो खुश हो गया। कहता जी बहुत शुक्रिया ताड़ा, मैं अगले महीने दे दूंगा। मैं कहा जी आप दो या ना दो, मुझे इससे सरोकार नहीं। मैं जानता हूं मैं जिस खुदा की प्रस्तिश करता हूं, जिस खुदा को मैं मानता हूं, वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है और वो मुझे पैसे मुहैया कर देगा। और ऐसे हुआ कि अगले महीने उससे मुझे 600 रुपया दिया, उससे अगले महीने उसने 300 दिया, फिर उसने 300 दिया, उसने 1200 दे दिए। लेकिन 1200 देने के बाद मेरी जेब तो खाली हो गई थी, लेकिन खुदा ने हैरानकुन तरीके से जब मेरे बॉस ट्राईपोर्ट से वापस आए, उन्होंने आते ही मुझे 1000 रुपया दे दिया। मैंने कहा जी ये क्या कहता है, बस रख लो यार, मेरे दिल में आया था रास्ते में कि मैं तुम्हें दे दूं। मैं कहा 200 रह गया बस। 1000 तो पूरा हो गया। और 1000 जेब में भी डाले था तो मेरे बॉस का एक दोस्त आ गया। उसने कहा कि भाई वो ऐसा करो कि फलानी जगह पे मेरा कुछ सामान है, वो जाके ले आओ। मैंने कहा जी ठीक है। उसने मुझे 1000 रुपया दिया और वो सामान 800 रुपए का था। अब तुम समझ ही समझदार हो। जब मैंने उसको 200 रुपया दिया, मैंने उसको 200 रुपया दिया, मैंने कहा सर ये 200 रुपया। उसने कहा कि नहीं बेटा ये आपका ही, मैंने आपसे मांगे हैं, ये आप रखें। 200 रुपया उसने दे दिया, 1200 पूरे हो गए। 3 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स की भी जरूरत पूरी हो गई और खुदा ने मेरा भी काम कर दिया। जितने पैसे मेरे पास थे उतने मेरे पास वापस आ गए। मैंने ये चीज सीखी कि खुदा जिस शख्स का जहन खोल देता है उसकी लाइफ में प्रॉब्लम कोई नहीं है। जब हम कलाम को समझ लेते हैं, हमारा जहन खुल जाता है, तब हम कलाम पर एक्ट करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि कलाम हमारे जहन में स्टोर होता है। जिस शख्स का जहन खुल गया है, समझे कलाम उसमें स्टोर होना शुरू हो गया, उसके दिल में जाना शुरू हो गया। और जिस शख्स के दिल में कलाम महफूज है, कलाम बवक्ते जरूरत निकलता है और उस शख्स की हेल्प करता है, उसकी सपोर्ट करता है, और वो शख्स वो काम कर गुजरता है जो आम लोग नहीं करते। हम कैसे काम करते हैं, किस सपोर्ट से करते हैं? खुदा के कलाम की सपोर्ट से। खुदा में दिलाई देता कर दे, कुछ नहीं होता, कर दे दाई की दे दे ताबेदारी कर, और हम दाई की दे देते हैं और खुदा में ब्लेस कर देता है। लेकिन जिसका दिमाग बंद है वो शैतान की बात आराम से मांग ले। कहता 10,000 तेरी तनख्वाह विचों 1000 कट देगा तो पीछे तो तंग नहीं होएगा। कहना तो वैसे तो ठीक है, मेरा भी यही इरादा सी, जेब में डाले। दिमाग बंद है। फिर उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि कलाम मुकद्दस को समझें। जब हम खुदा के कलाम को समझने लगते हैं, हमारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, हमारा रवैया बदलना शुरू होता है। हम अपनी गुफ्तगू पर गौर करते हैं कि मेरी जुबान कितनी करप्ट है, मेरी जुबान कितनी अकड़ी हुई है, इसको कितना कलफ लगा हुआ है, इसके अंदर कितनी सख्त बातें हैं और ये दूसरों को छेदती हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं। हम अपनी जिंदगी को देखना शुरू कर देते हैं, क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है। जब हमारा जहन बंद है, आप किसी आटे के कनस्तर को ले, उसका ढक्कन ना उतारे और उसके ऊपर आटा डाल दें, क्या होगा जी? कोई बाल्टी ले, उसके ऊपर ढक्कन लगा दे, उसके ऊपर पानी डाल दे, पानी सारा बाहर गिर जाए, क्योंकि ढक्कन बंद है। हर इतवार चर्च आ रहे, हर इतवार चर्च आ रहे, अनवर फजल का चर्च जा रहे, ताजिक टीवी लगा हुआ है, फलाना चैनल लगा है, फलाना चैनल लगा हुआ, उस पे खादम ने कलाम सुनाया, कहना बहुत अच्छा, दादा भी बहुत अच्छा, यह भी कमाल है, दादा बहुत अच्छा, दादा बहुत अच्छा, लेकिन सब बाहर गिर रहा जी, अंदर कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि दिमाग बंद। दुआ करें कि खुदावंद मेरा दिमाग खोल ताकि मैं तेरे कलाम को समझ सकूं। यकीन माने जिस शख्स को कलाम समझ आना शुरू हो जाता है, उसका अपना कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ यीशु का हो जाता है। हालेलुया। सो मेरी दुआ है कि हम सब जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबका दिमाग खुल जाए। आमीन। जैसे पेप्सी की बोतल खुल जाए फट करके, दिमाग खुल जाए और कलाम आना शुरू हो जाए। हालेलुया। और फिर जिंदगी बदल जाएगी। मैं आपको बताऊं मेरा दिमाग कैसे खुला था। मैं टेंपल ऑफ गॉड चर्च में गया, पास्टर विल्सन कामरान वहां पर कलाम सुना रहे थे, और जो शख्स मुझे वहां पर लेकर गया था, उस शख्स ने मुझे कहा कि जनाब वो 1 घंटे की इबादत करते हैं और 1.25 घंटे का कलाम सुनाते हैं। मैं कहा है, मैं तो एक गीत भी नहीं गा सकता था, मेरा तो इतना भी स्टेमिना नहीं। और वो मुझे कहने लगा कि आपने चलना है। मैंने इसको इतनी दफा टरखाया कि मुझे खुद ही शर्म आ गई कि अब मैं क्या बहाने बनाऊं। कभी मैं कहता था मेरे सर में दर्द है, कभी मैं कहता था मैंने बॉस ने बुला लिया है, छुट्टी वाले दिन भी मैं कहता था मुझे बॉस ने बुला लिया, झूठ बोलता था। लेकिन वो शख्स डिटर्मिनेशन के साथ लगा रहा। अगले संडे फिर पक्का, मैं कहा जी पक्का। अगले संडे मैं कुछ और बहाना, वो कहता था कोई बात नहीं। वो मेरे पे गुस्सा नहीं हुआ, मैं इस चीज से बड़ा खुश हूँ। वो गुस्सा नहीं हुआ, वो ईमानदार आदमी था, वो खुदा से मोहब्बत करता था, वो चाहता था कि एक दफा ये चल के खुदा का कलाम सुने। और मैंने एक ही दफा सुना, फंस गया। और जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने प्रस्तिश करना शुरू की। प्रस्तिश की तो मैं बड़ा बोर हुआ, सच्चाई से बता रहा हूं, क्योंकि मुझे गीत कोई नहीं आता था। सारे वहां पे गीत गा रहे थे, मैं सोचता था क्या करूं क्या ना करूं। प्रस्तिश तो खैर मैंने गुजार ली, लेकिन उससे बड़ी बोरियत मेरे लिए ये थी कि उन 1.25 घंटा ने कलाम सुनाना। म्यूजिक का तो मुझे चलो फिर भी थोड़ा बहुत शौक था, मैंने ड्रम को देख रहा था कैसे रोल मार रहा है वो,
तबले वाले को देख रहा कैसे टिकट मार रहा है, कीबोर्ड वाले को देख रहा था कौन से पीस दे रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा था। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब ये 1.25 घंटे का कलाम कैसे गुजारूंगा भैया, ये तो बहुत मुश्किल काम है, और मैं परेशान था कि मैं क्यों आ गया यहाँ पे, आज भी बहाना कर दे। लेकिन जब खुदा का खादम आया स्टेज पे, उसने कलाम सुनाना शुरू किया, यकीन माने आफ्टर 3 मिनट के बाद, हवाला पढ़ने के बाद जब उन्होंने कलाम सुनाना शुरू किया, 3 मिनट के बाद मैं ज़ारों के तार रो रहा था वहां आंसुओं के साथ, और लोग मुझे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि मुंडे में हो के गया, और मैं आंसुओं को छुपा रहा था, लेकिन मेरे से छुपाए नहीं जा रहे थे, और मैं मूसलाधार, मेरी जैसे बारिश होती है इसी तरह आंसू निकल रहे थे। और उस दिन मैंने तौबा कर ली, मैंने अपना खुदा उनको दे दिया, खुदा ने मेरा ज़हन खोल दिया, और मैं जैसे ही घर आया मैंने अपनी बाइबल को झाड़ा और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की, और मुझे ऐसी लगन और मोहब्बत हो गई खुदा के कलाम से कि मुझे सब चीज़ों से ज़्यादा इसी से मोहब्बत होगी। हालेलुया। सो मैं चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को पढ़ने से पहले दुआ करें कि खुदावंद मेरे ज़हन को खोल ताकि मैं इस कलाम को कबूल कर सकूं, समझ सकूं। अगर मुझे ये समझ ना आया तो ये मेरे लिए बेफायदा हो जाएगा, वरना मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो दरबार के तेल से बाप बेटा कर रहे हैं, दरबार के ऊपर दिए पड़े हुए, उनके अंदर तेल पड़ा, देखें दिमाग बंद है उस शख्स का, दरबार के तेल से क्रॉस का निशान बना रहा है, बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। उसका दिमाग बंद है, उसको इतनी अकल नहीं है कि खुदा तो मना करता है और मैं इसी तेल से सलीब का निशान बना रहा हूं। आप क्या कहेंगे, उसका दिमाग खुला हुआ जी, उसके दिमाग के ऊपर संगल पड़े हुए हैं, खाली बंद भी नहीं है। उन जंजीरों को टूटने की जरूरत है। दूसरी बात, हमें कलाम इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि खुदा का रूह हमारी जिंदगी में नहीं। बाइबल मुकद्दस का राइटर कौन है, क्या आप बता सकते हैं? पाक रूह। इसको 40 राइटर्स ने लिखा है, लेकिन वो जितने भी राइटर्स थे वो इंस्पिरेशन से लिखते थे। खुदा का पाक रूह उन्हें डिक्टेशन देता था, वो लिखते थे। और बहुत से नबियों के ताल्लुक से लिखा है, फिर खुदा के रूह ने उससे ये कहा, फिर खुदा ने बहुत से लोगों से कहा कि इसको लिखो, उन्होंने इसको लिखा। और खुदा के पाक रूह के बगैर इसे लिखना मुमकिन नहीं था। और खुदा का पाक रूह जिन जिंदगियों में नहीं है उनको खुदा का कलाम समझ नहीं आता। दूसरा मुद्दा यह है, दिमाग खुल गया, लेकिन अब हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। हमें कैसे टीचर की जरूरत है ताकि वो हमें खुदा का कलाम सिखा सके, खुदा का कलाम समझा सके। इसके लिए मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों का 2 बाब और उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवा इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। आमीन। खुदा के रूह के बगैर कोई शख्स खुदा की बातें नहीं जान सकता। और ये बातें किसकी हैं? ये मेरी हैं, ये खुदा की बातें हैं। और खुदा की बातों को जानने के लिए हमें खुदा के रूह की जरूरत है, उसके साथ फेलोशिप कराने की जरूरत है, उसके साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। जब हम खुदा के रूह के साथ फेलोशिप बनाते हैं तो खुदा का रूह हर रोज हमें कलाम सिखाता है। होता क्या है, हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ के चले जाते हैं, अपने काम पे चले जाते हैं या बाजार चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। अब रूह का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो हमारा दोस्त है, वो तो हर वक्त हमारे साथ रहने वाला मददगार है। हम आलू ले रहे होते हैं लेकिन भेद की बातें खुल रही होती। इस तरह भाजी कहता 40 रुपए, कहता पा दे। आप कपड़ा खरीदने जाएं, आप मोटरसाइकिल पे जाएं, आप कहीं भी खड़े हो, खुदा का रूह बात कर रहा होता है, गीत दे रहा होता है। मैंने बहुत से गीत मोटरसाइकिल पे लिखे हैं, साइकिल पे लिखे हैं। जॉनसन भाई का जो बेटा बड़ा शारून जो बाहर चला गया दुबई, वो मुझे अक्सर कहता था कि भाई मैं जब भी आपको देखता हूँ आप अपने ख्यालों में जा रहे होते हैं। कहता मैं कई दफा आपको हेलो करता हूँ, आप देखते ही नहीं। मैं कहा अच्छा यार सॉरी। वो कहता आप कुछ गुनगुना रहे होते हैं, हैंडल के ऊपर कुछ कर रहे होते हैं। मैं कहा बस तू समझ सकना था क्या हो रहा था। और बहुत से गीत मैंने साइकिल पे लिखे हैं। होता क्या है, आप बाइबल का दस पढ़ के निकले हैं, लेकिन अब उसको सिखाना भी तो है। और वो कौन सिखाएगा? खुदा का पाक रूह सिखाएगा, क्योंकि बेहतरीन उस्ताद है, क्योंकि उसने इसको लिखाया है, वही इसकी ट्रांसलेशन कर सकता है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं, खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, उसको अपने दिल में महफूज कर लेते हैं, तो फिर उसकी मजीद तशरीह जो है वो खुदा का पाक रूह हमें देता है। खुदा का पाक रूह हमें सिखाता है कि कौन सी हालत में हमने किस तौर से बिहेव करना। अगर बीवी गुस्से से बोल रही है तो शोहर ने क्या रवैया इख्तियार करना, ये पाक रूह आपको बताएगा। अगर शोहर का पारा हाई है, बीवी ने कैसे उसको हैंडल करना। बच्चे बदतमीजी कर रहे हैं तो वालिदैन क्या करें, वालिदैन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सख्ती कर रहे हैं तो बच्चों को क्या करना है, चर्च के अंदर कैसे आना है, चर्च से कैसे बाहर जाना है, ये सारी चीजें हमें पाक रूह सिखाएगा। आमीन। क्या आप खुदा के पाक रूह के साथ फेलोशिप बनाएंगे? क्या आप उससे कहेंगे कि पाक रूह मेरे साथ साथ रहे? और पाक रूह बड़ा सेंसिटिव है। मैंने एक चीज देखी है, पाक रूह अपने साथ किसी दूसरे दोस्त को नहीं मानता। खुदा का पाक रूह नहीं चाहता कि हमारे इर्द गिर्द दूसरे झमघटे भी हों। वो हमारा ऐसा दोस्त है, वो चाहता है कि हम हो और वो हो।
फिल्म भी आपने देखनी है, सिगरेट भी पीनी है, शराब भी पीनी है। ये सारे दोस्त ही है ना जिनको हमने दोस्त बनाया। शराब के बगैर हम रह नहीं सकते, सिगरेट के बगैर रह नहीं सकते, गालियों के बगैर हम रह सकते। ये वो चीजें हैं जिनके साथ पाकरू नहीं रहेगा। हमें इन चीजों को अपनी लाइफ से निकालना होगा। ये वो फ्रेंड है जिन्हें पाकरू पसंद नहीं करता। हम तो इन्हें पसंद करते हैं, लेकिन पाकरू के लिए वो जहर है। और जब हमारी लाइफ में ये चीजें हैं तो पाकरू हमारे साथ मूव नहीं करेगा। पाकरू चाहता है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें, उसके लहू से धुले, पाक हो जाएं, साफ हो जाएं, ताकि वो हमारे साथ चले। वो पाकरू है, बदरू नहीं है। बदरू तो इन ऐसे लोगों पे आती है जो शराबी हैं, बुरे काम करते हैं और गंदी सोसाइटी में बैठते हैं। उनके ऊपर बदरूहें नाजिल हो जाती है, क्योंकि वो बदरूहें हैं। वो बद कामों को पसंद करती हैं, बद पर्सनैलिटी को पसंद करती हैं। लेकिन पाक रूह जो है वो पाक माहौल में आता है। और जिस शख्स पर बर्रे का लहू हो, जिसने अपना आप खुदावंद को दे दिया हो, वो कहता है ये मेरी फेवरेट जगह है, हालेलुया, यहाँ मैं जाऊंगा, इसके साथ सुकूनत करूंगा। तो जिस शख्स के अंदर पाक रूह है उसको खुदा का कलाम समझ आना शुरू हो जाता है। पहली बात, जिस शख्स का जहन बंद है वो कलाम नहीं समझ सकता। दूसरी बात, जिस शख्स ने खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में नहीं पाया और वो खुदा के पाक रूह की कदर नहीं करता, वो खुदा के कलाम को नहीं समझ सकता। तीसरी बात, रसूलों से तालीम नहीं पाते। आप ये जो यहाँ पर आए हैं, आप कुछ सीख रहे हैं यहाँ से। बहुत से लोगों ने हमें बताया कि जी जब हम यहाँ पर नहीं आते थे, किसी और चर्च भी नहीं जाते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे चर्चों में पैगाम नहीं सुनाए जाते, वहां पे भी अच्छे खादम हैं, कलाम सुनाते हैं। लेकिन बहुत से लोगों की गवाहियां में ये मिली कि जब हम यहाँ पर आए तो हमें ऐसा लगा कि ये कलाम क्या है, ये कैसा कलाम है, हमें तो बड़ी बरकत मिल रही जी, हमारी जिंदगी तो बदल रही। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अमाल की किताब में, जब उन लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, उन लोगों ने तौबा की, बपतिस्मा लिया, खुदावंद के घर में आ गए, तो वो रसूलों से तालीम पाने लगे। क्या करने लगे जी? तालीम पाने के लिए मुझे और आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आप अपने बच्चों को डेली तैयार करके सुबह 6 बजे उठ के तैयार करके उसको वैन में बिठाते हैं और बच्चा वैन में जाता है, माँ उसको खाना बना के देती। कितनी एफर्ट है ताकि हमारा बच्चा तालीम हासिल करे। तालीम पाना बाइबल मुकद्दस की सबसे बेहतरीन बात है। जो शख्स खुदा के कलाम की तालीम के पीछे भागता है वो शख्स कभी घाटा नहीं खाता, वो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने और मेरे साथी जो जितने भी हैं, हम सब ने कलाम को सुनने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट किया, एक्स्ट्रा माइल गए। इसीलिए खुदा ऑनर करता है अपने लोगों की कि ये मेरे कलाम को सीखने के मुतलाशी हैं। ऐसी जगहों पर जहां पर ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गड़ी शो से बाहर कॉलोनी, मेरे पास किराया नहीं था, मैं गड़ी शो में रहता था अपने मामू के पास। और मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे कहूं कि जी मुझे 20 रुपए दें, मैंने चर्च जाना है, क्योंकि उन्होंने कहना था कि भाई इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, तुम ये पास ही चले जाओ, ये तो बिल्कुल नजदीक है। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्यों नहीं ये मौका दूं कि वो मुझे ये कहें। मुझे जहां कलाम की समझ आ रही, मुझे जहां बरकत मिल रही, मैं तो वहीं जाऊंगा। और मैं चुप करके निकला। और उस दिन मैं 8:30 बजे, 8:15 बजे निकलने की बजाय मैं 6:45 बजे घर से रवाना हो गया। मेरी मामी मुझे कहने लगी आज इतनी जल्दी? मैं कहा जी मुझे रास्ते में कोई काम है, मुझे नाश्ता दें। मैंने नाश्ता किया और बाहर कॉलोनी की तरफ पैदल सफर इख्तियार किया। और मेरी आदत है कि मैं लिफ्ट भी नहीं लेता। बहुत से लोग होते हैं वो लिफ्ट ले लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लिफ्ट लेता। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी किसी से लिफ्ट ली। और मैं पैदल चल पड़ा और थोड़ी एक जगह पे छांव आई, वहां पे रुक गया, फिर आगे रुक गया। लेकिन मैं 8:45 बजे चर्च में पहुंच चुका था। बड़े सुकून से गया, मुझे पता था कि तेज जाऊंगा तो पसीना आ जाएगा। मैंने एस्टिमेट लगा लिया कि मैं इतने बजे चलूंगा तो इतने बजे मैं बाहर को नहीं पहुंच जाऊंगा। मैं आराम आराम से गया और बीच में सांस भी लिया ताकि मुझे पसीना ना आए। मेरा पसीना अगर आ भी गया तो सूख जाए। और गर्मियां थी और मैं वहां पहुंचा और मैंने जाते 3-4 गिलास पानी पिया, सेट किया अपने आप को, और फिर मैं अंदर जाकर चर्च में बैठ गया। सबसे पहला बंदा मैं था। किराया नहीं था मेरे पास, लेकिन सबसे पहले पहुंचने वाले बंदों में से मैं था। अभी क्वायर नहीं पहुंची थी वहां पे। रसूलों से तालीम पाने, एफर्ट कहाँ है हमारे अंदर? तो एफर्ट ही कोई नहीं। हम लोगों को बताते हैं भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नो जी, हमने लेट ही आना है, हमने लेट ही आना। अगर आपकी कोई खास वजह है तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, आप चर्च क्यों नहीं आते? कहता सर हमें छुट्टी नहीं मिलती। मैंने कहा यार मैं नहीं मानता इस बात। आप किसी भी सख्त से सख्त आदमी से भी कहेंगे सर हमें इबादत पे जाना है, वो एक दफा आपको रोक लेगा, 2 बार रोकेगा। लेकिन अगर आप सच्चाई से आना चाहते हैं चर्च, तीसरी बार खुदा उस पर अपना खौफ तारी कर दे। वो बंदा आपको बुलाएगा, वो कहेगा कि यार आप इबादत पे चले जाया करो। क्योंकि कितना भी कोई गुनाहगार आदमी हो, वो इस बात से डरता है, उसके अंदर खौफ आता है कि मैं किसी को इबादत करने से रोक रहा हूं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मुंह ही नहीं खोलते, हम इसको बहाना बना लेते हैं। हम कहते हैं ये आड़ है, इस आड़ में हम अपनी सुस्ती को और तरक्की देते हैं। लेकिन किसी भी चीज को खुदा के कलाम के दरमियान हायल मत होने दो। खुदा के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए एफर्ट करें। और जब आप एफर्ट करेंगे खुदा आपको बरकत देगा। खुदा जानता है कि ये बच्चा एफर्ट करके यहां तक पहुंचा है, मैं इसे जरूर ब्लेस करूंगा। एक शख्स बॉर्डर से आता था कलाम सुनने के लिए। उस वक्त मैं गाले मार्केट में संडे को कलाम सुनाता था। तो वहां पर वो लड़का साइकिल पर आता था बॉर्डर से, और वो पसीने से शराबोर हुआ था। लेकिन उसने कहा कि जनाब मैं एक दिन इतनी मुश्किल में था, मुझे किसी ने कहा कि रास्ते में मुझे मिला, तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा जी मैं गाले मार्केट चर्च जा रहा हूँ। कहता मैं उसके साथ आ गया।
कहता और मैं इतना परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी ये हालत थी कि मैं खुदकुशी कर लूं और मैं इस कश्मकश में था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूं क्योंकि मैं नाउमीद शख्स था। कहता लेकिन जब मैंने वहां पर खुदा का कलाम सुना मेरी जिंदगी ही बदल गई, मेरे हालात बदल गए। और हमने देखा कि चर्च के साथ रहने वाले लोग सबसे लेट आ रहे थे, वो सबसे लेट पहुंचते हैं, वो सोचते हैं वो इजी लेते हैं, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, मैं आधे नाल ही जाना। लेकिन जिस शख्स के अंदर ये शौक नहीं है कि वो तालीम पाए, रसूलों से सीखे, सुने, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, ना उसको कलाम समझ आएगी। मैं इस नुक्ते को बयान कर रहा हूं, जिस शख्स को कलाम समझ नहीं आएगा, जिसको कलाम की समझ नहीं आएगी, वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। पहली रुकावट क्या है? दिमाग बंद। दूसरी रुकावट यह है पाक रूह के साथ फेलोशिप कोई नहीं। तीसरी रुकावट यह है कि कलाम नहीं सुनते खुदा के खादमों से। और चौथी बात यह है कि हम तहकीक नहीं करते, हमारी फेलोशिप ऐसी नहीं है जिसमें हम खुदा के कलाम को डिस्कस कर सकते। ये सबसे जरूरी बात है, इसको याद रखें। ये किसी की भी नहीं है, यहाँ बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हैं। आप 3-4 लोग हैं जो दुआ करते हैं मिलकर खुदा के कलाम के ऊपर बातचीत कर, फैमिलीज के अंदर इस रवैये को डेवलप कर। मैं और शायद मुझे याद है कि जब मैं काम से आता था शायद मेरा इंतजार कर रहा था। उन दिनों में वो जॉब नहीं करता था और वो मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे आने से पहले वो खाना तैयार रखता था, वो अपनी फैमिली कहता था कभी खाना तैयार रखना, और जैसे ही मैं पहुंचता था वो फौरन कहता था सर तुसी नहा लो, मैं खाना पहले लेके आ, और वो खाना लेके आता था, हम खाना खाते थे। उसके बाद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक हमारा यही काम था कि हमने बाइबल को पढ़ना है या कोई किताब पढ़नी है। मैं किताब पढ़ता था, शायद सुनता रहता था, और हम किसी खास जगह पर रुक जाते थे और हम कहते थे कि इसका क्या मतलब है, ये खादम ये क्या कह रहा है, और फिर हम बाइबल मुकद्दस में से तफ्तीश करते थे। इसके लिए आप मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका 17 बाब, उसकी 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन भाइयों ने फौरन रातों रात पौलुस और सिलास को बैरिया में भेज दिया। वो वहां पहुंचकर यहूदियों के इबादत खाने में गए। ये लोग फसल ने कि यहूदियों से नेक जात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताबे मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया ये बातें इसी तरह हैं। क्या करते थे जी? तहकीक करते थे और किताबे मुकद्दस में से देखते थे कि जो बातें हमने सुनी है क्या ये इसी तरह से हैं। ये बहुत जरूरी है, तहकीक करें, बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट बन जाएं। ये लोग क्या करते थे? आपस में गुफ्तो शनीद करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं और भाई शाहिद और मेरे साथ 2 लोग और थे, हम बाहर टूनी से कलाम सुन के आते थे, हम साइकिलों पे होते थे और हम सारे रास्ते में कलाम की बात करते जाते थे। वो पॉइंट कैसा, वो जगह कैसी थी, वो कैसा हवाला था, ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा। और फिर हम आके उसको दोबारा घर में भी पढ़ते थे और उस पर तहकीक करते थे, गौर करते थे, और खुदा का कलाम हमें ब्लेस करता था। हम क्या फेलोशिप करते हैं? आए जी हमारे घर में दुआ है, बाजी तुसी साडे घर दुआ ते आया करो, ठीक है भैन में आ जाऊंगी, भैन आ गई, हालेलुया हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी सताइश हो। थोड़ी सी दुआ की, ऐ कुड़िए चाय बना, अपनी बेटी को वो कहती चाय बना ली कुड़ी ने, बस फिर इधर उधर की बात है, बेकार बात है। उन्हें यह कहता फलानी आई सी, उन्हें यह क्या जी फलाने का पता चलिया, फलाने के घर लड़ाई हो गई, फलाने के घर इंज होया, ये होया वो होया। दुआ कितनी की? 5 मिनट की, और इधर उधर की बातें कितनी की? 2 घंटे। बंदा घर बैठा कितने चली गई है, मैनू भुख लगी हुई है, और फिर जाते ही उसके बंदे ने उसको पकड़ लिया। उन्हें कहा खबरदार जो तू कल गई दुआ ते, असी इतने भुखे मरने हैं, तेरियां दुआवां नहीं मुक रही। तो हुआ क्या? दुआ तो उसने 5 मिनट की और बाकी काम क्या किया था? इधर उधर की बातों में गुजारा। खुदा चाहता है कि हम ट्रू फेलोशिप करें, जिसमें हम एक दूसरे से सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। कि बहन कल मैं बाइबल पढ़ रही थी, मैंने ये आयत पढ़ी, मैं तो हैरान हो गई पढ़, ये देखें, आप भी देखें। वो कहेगी वेरी गुड, मैं इसके नीचे निशान लगा लेती हूँ, मैं रात को अपने शोहर को दिखाऊंगी, मेरा बेटा स्कूल से आएगा मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैं अपनी बेटी को फोन करके बताऊंगी जिससे मैं सारा दिन बातें करती हूँ कि तू की पकाया आज, उसको मैं बताऊंगी कि बेटा ये आयत पढ़। ये जो पैकेज आ गए इन्होंने भी सत्यानाश कर दिया लोगों। मां बैठी सारा दिन की किथे गया, कहती अम्मी वो तो सब्जी भी नहीं दे के गया, वो तो है ही अंजला बातें कर। मैं ये कहता हूँ पुरानी बच्चियां ठीक थी, खुदा माफ करे, वो बच्चियां ठीक थी, वो कम से कम अपनी छोटी छोटी बातें घर तो नहीं बता पाती, टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, उनकी जिंदगी बेहतर थी। और आज क्या है? छोटी छोटी बात, अम्मी इंज हो गया, कहता अच्छा मैं भी आ रही हूँ, वो भी आ जाती है। माँ वापस जाती है, वो कहती अम्मी इंज हो गया, तू मेरे वाला आ जा, इधर आ, उधर जा, इधर जा, उधर जा, लगे हुए बस कोई और काम। और कई लोगों को मैंने देखा कि वो सारा दिन टेलीफोन पर ऑन रहते, सिर्फ यही कि एक दूसरे के साथ इन टच रहें। आपके पास इतना वक्त है, उसको अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। हाँ, डेली एक दूसरे के साथ इन टच रहना अच्छा है, 2 मिनट की बात करें कि सब खैरियत है, बच्चा ठीक है, वो ठीक है, सब ठीक है, ठीक है जी ठीक है, चलो जी अपना काम करो। लेकिन हम बस इसी चीजों में बिजी हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम को वक्त दें। आमीन। आप समझ रहे इन बातों को? कलाम सीखने की कोशिश करें, तहकीक करें, एक दूसरे से बातचीत करें, कलाम के हवाले दें। कई लोगों को मैंने देखा खुद बाइबल नहीं पढ़ते और नीचे मैंने किसी को हवाला भेजा, शरीक साहब को, शरीक साहब ने को जसन साहब को कही,
पढ़ा नहीं कि उसके अंदर है क्या। कई लोग इसी को खिदमत समझ रहे हैं। एक बंदा मुझे डेली मैसेज करता बाइबल के और गलत हवाले होते हैं नीचे लिखे। यूहन्ना के इंजील का हवाला होता है, उसके नीचे लूका लिखा होता है, लूका 13 बाब। मैं कहा यार मेरे को बाइबल हैगी, तेरी मेहरबानी, तू खुद पढ़ते, तू गलत भेजने हवाले, चेक करके भेजा कर। ओ सॉरी। उसके बाद सॉरी के 2 मैसेज उसने किए, फिर उसने आज के बाद मेरे मत्थे नहीं लगा। पता नहीं कौन था वो। उनको ये लगता है शायद पादरियों को हम हवाले भेजने, पादरी बड़े खुश होंगे कि यार हमें पता है कि ये बंदा हवाले भेज रहा है, ये खुद नहीं पढ़ता। इस तरह ना करें, खुद बाइबल पढ़ें। अगर आपने कुछ चीज सीखी है तो आप उसको बताएं कि भाई ये वाला हवाला पढ़ें, देखें इसमें मैंने ये चीज सीखी है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। ये रफाकत, ये नहीं कि भेजी जाना और कहता यार ने तो जान ही सता देती, मैसेज भेजी जा रहा है, वो उसको डिलीट करता जाता है और उनके दूसरों के इनबॉक्स भर देते हैं गलत हवालों से। आखिरी बात, इसके लिए मैं संत निकालिए 2 तिमोथियस, प्रेज द लॉर्ड, 2 तिमोथियस उसका 4 बाब और उसकी 13वीं आयत। ये लेटर पौलुस रसूल ने जेल में लिखा था, जब वो जेल में था। जो चोगा मैं तुरवास में कुरपस के हाथ छोड़ आया हूं, जब तू आए तो वो और किताबें खासकर रिक के तुमार लेता आइयो। आमीन। जेल में है जी, लेकिन वो बुक्स मंगवा रहा है अपने शागिर्द से। उसने कहा कि वो चोगा जो मैं वहां छोड़ा था वो भी, और किताबें और रिक के तुमार लेता आइयो। इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये पौलुस रसूल के वो नोट से जो उसने अपने कलाम सुनाने के लिए लिखे हुए। एक ख्याल ये है कि उस जमाने के रबियों ने जो किताबें तफसीरों की सूरत में लिखी थी, पौलुस रसूल उनकी स्टडी करता था, क्योंकि वो एक आलम शख्स था और खुदा के कलाम की तहकीक करता था। और बहुत से लोगों का मानना यह है कि ये वो दस्तावेज थी जो जेल से रिहाई पाने के लिए उसको दरकार थी। लेकिन गालिब ख्याल ये है कि पौलुस रसूल वो किताबें इसलिए मंगवा रहा था ताकि वो जेल के अंदर बैठ के खुदा के कलाम को पढ़े, सीखें। आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप तफसीरें खरीदें। जो लोग पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस, तफसीरों को खरीदें। बाइबल मुकद्दस की तफसीर है, उर्दू में बहुत सी तफसीरें मौजूद हैं, विलियम मैकडोनल्ड की है, और इसके अलावा टंडेल सीरीज है, इसके अलावा असलम ज़ियाई साहब की खूबसूरत किताबें हैं जो मुख्तलिफ बाइबल की किताबों की तफसीरें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। जो लोग इंग्लिश पढ़ना जानते हैं उनके लिए बाउंड्री बहुत वसी है, वो नेट पर जाएं और वो किसी भी बाइबल मुकद्दस की किताब की तफसीर को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ये एक बेहतरीन जरिया है जिससे हम दूसरे शख्स के ख्यालात से अपने ख्यालात को हम आहंग कर सकते हैं या तहकीक कर सकते हैं। 3 लोगों ने इस आयत के बारे में क्या राय दी, चौथी राय आपकी है। जब 3 लोगों की राय मिल जाएगी, फलाना बंदा ये कहता है, फलाना ये कहता है, तीसरा ये कहता है, चौथा मैं हूं, आप चारों चीजों को मिलाते हैं और आप एक नतीजे पर पहुंच जाते हैं। हम क्या करते हैं, मैं जहां से नहीं समझ आता बंद करके पेड़ के आगे निकल जाता हूं। कहता बाइबल बड़ी मुश्किल है पाजी, मुश्किल इसलिए क्योंकि दिमाग बंद है, मुश्किल इसलिए क्योंकि पाकरू साथ नहीं है, मुश्किल इसलिए क्योंकि रसूलों से तालीम नहीं पाते, मुश्किल इसलिए क्योंकि अच्छी रफाकत नहीं है, मुश्किल इसलिए क्योंकि हमारे अंदर कलाम को सीखने की जुस्तजू ही नहीं। वो शख्स जेल के अंदर बैठा हुआ है, मार भी उसको पड़ती होगी, सख्ती भी उस पर की जाती होगी, उसको तरह तरह से सताया जाता होगा, ज़हनी तौर पर उसको ज़ियत दी जाती होगी, लेकिन तो भी वो शख्स खुदा के कलाम को सीखना चाहता था। जेल के अंदर भी उसके अंदर ये ख्वाहिश थी कि ये तो अच्छा वक्त है, अब मैं कहीं आता जाता नहीं, इस कमरे के अंदर बंद हूं, चलो खुदा का कलाम ही पढ़ूं, खुदा का कलाम सीखूं। ये तफसीरें ज्यादा महंगी नहीं है, 70 रुपए 75 रुपए इनकी कीमत है। मत्ती की अंजील और मरकज की अंजील, लूका यूहन्ना, ये 2-2 जिल्दों के अंदर है, 70-75 रुपए इनकी कीमत, कुछ भी नहीं है ये 70-75 रुपए। अब चंद दिन पहले मुझे आफिया बता रही थी कि ये अपनी नानी के घर गया तो इसका जो मामू है, आफिया का बड़ा भाई, वो इनके लिए आइसक्रीम लेके आया, कॉर्नेटो, वो कोन की तरह जो होती, तो वाइज ने उसको पकड़ा, वाइज को वो पता नहीं था कि ये आइसक्रीम है, उसने ऐसे करके उल्टाया, कागज उसके हाथ में रह गया, आइसक्रीम नीचे गिर गई मिट्टी पे। पता नहीं 70-80 रुपए की आती है, कितने की आती है पता होगा जो खाते हैं, 60 रुपए की, तो 15 रुपए और डालने बस, एक तो सीर आ जाती, कॉर्नेटो गिर जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी, बच्चा एक दफा खा लेगा। लेकिन आप बच्चों के सामने पढ़ना शुरू करें, डेवलप करें, अपनी स्टडी को दिखाएं कि बच्चों बाइबल पढ़ना। जब आपको बच्चे पढ़ता हुआ देखेंगे तो बच्चे फौरन ही सोचेंगे कि ये कोई खास ही चीज है जो मेरा बाप करता है, ये कोई खास चीज है जो मेरी माँ करती है। आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस चीज की तरफ राग़ब होंगे। जब हम खुद बाइबल नहीं पढ़ेंगे घर में, खुद कलाम के भेदों को सीखने के लिए जुस्तजू नहीं दिखाएंगे, बच्चे भी इजी हो जाएंगे। हम बच्चों को नेट दे देते हैं, बच्चों कहते चलो बच्चे को पता नहीं कि हमने क्या करना है, वो गाने डाउनलोड करते हैं, वो फिल्में डाउनलोड करते हैं, वो ड्रामे डाउनलोड करते हैं, वो इर्द गिर्द की चीजों को लेते हैं, इर्द गिर्द की चीजों से इंस्पायर होते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हम उन्हें एक ऐसा माहौल दें जिससे वो खुदा के कलाम को सीख सकें। आमीन। जब खुदा का कलाम किसी शख्स को समझ आ जाता है वो बदल जाता है। J.N. डॉर्बी से एक दफा किसी शख्स ने पूछा था, उसने कहा जनाब ये पौलुस रसूल ने जो आयत लिखी है, मेरी नजर में तो ये आयत बड़ी गैर जरूरी है। उसने कहा तुम्हारी नजर में ये आयत गैर जरूरी होगी, लेकिन मेरी नजर में इसलिए गैर जरूरी नहीं है क्योंकि इस आयत को पढ़ने के बाद ही मैंने और किताबें खरीदी हैं
اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہی جو پہلے کتابیں تھیں ان کو بیچنے کا ارادہ ترک کیا ہے، ورنہ میں اپنی پرانی کتابوں کو بیچنا چاہتا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ میں نئی کتابیں نہیں خریدوں گا. کہتا لیکن پولس رسول کی یہ آیت پڑھنے کے بعد میں نے سوچا کہ جو پرانی کتابیں میرے پاس ہیں وہ میرے پاس ہی رہنی چاہیے اور مزید کچھ نئی کتابیں خرید کے لاؤں تاکہ خدا کے کلام کو سیکھ سکوں. ہاللیلویا. سو میرے عزیزو بہترین فیلوشپ بنائیے، اپنے دوستوں کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کیجیے. جو کچھ آپ نے پڑھا ہے، جس چیز سے آپ انسپائر ہو رہے ہیں، جو کچھ آپ کے اندر چل رہا ہے، اپنے دوستوں سے شیئر کریں. آپ کے دوست آپ سے شیئر کریں گے، بہنیں بہنوں سے شیئر کریں، بھائی بہن سے شیئر کریں، بیوی شوہر سے شیئر کرے، شوہر بیوی سے شیئر کرے. اور فیملی کے اندر خدا کے کلام کو سیکھنے کا ایک معیار بنائیں، ایک فضا قائم کریں تاکہ بچے وہاں پر سیکھ سکیں. خدا سے دعا کریں خدا میرے ذہن کو کھول دے. خدا کے پاک روح سے ریکویسٹ کریں کہ پاک روح میرے ساتھ ساتھ رہے تاکہ میں خدا کے کلام کو سیکھ سکوں اور اصولوں سے تعلیم پائیں تاکہ خدا آپ کو اوپر 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 لے کر جائے. بلیس کرے، ترقی دے، کامیاب بنائے. گاڈ بلیس یو.